तो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टीडीएस की क्लास ली थी, और जो कि एक थ्योरेटिकल क्लास थी आपके लिए, और आज की जो क्लास है वो प्रैक्टिकल की होने वाली है। इसे विक्की सर लेंगे टैली के। तो बिना वक्त गवाए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमित गौतम जी को फॉर द वीक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन मिस्टर सुभाष मलिक गारू। ओवर टू यू अमित गौतम। Thank you so much, Abhishek ji, and thank you so much, Saksham Yoga Society, for giving this opportunity to introduce our resource person. So now I would like to introduce our resource person, Mr. Vicky Gautam. Mr. Vicky Gautam is a BCom Honors graduate from Motilal Nehru College, University of Delhi. He completed his internship at VGHSR and Associate LLP, a chartered accountant firm, and later continued working there as an auditor, where he gained practical exposure in auditing various companies. He has also worked with Samsung, handling MIS, financial reporting, and overall accounting function. Further, he worked as a senior accountant in an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Kesap India, a German-based company, and he is also pursuing LLB to gain expertise in taxation and corporate law. Apart from his professional career, he has actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharati, Magic Works, and Saksham Rojgar Society. He has been mentored and guided by Ms. Jyotika Kalra ma'am, President of Saksham Rojgar Society, who has been a constant source of support and motivational since his school days. With his rich experience and inspiring journey, we are truly honored to have him with us today. And now I would like to introduce our uh, Sir Subhash Malik. Subhash Malik is having 50 years of diversified experience. He is a management consultant and mentor by profession, a facilitated by passion, and a volunteer by nature. A certified trainer and a motivational speaker, Subhash Malik sir has a 100 plus top MNCs and Indian brands universities in client list. He has trained about 200,000 people in universities, institute, corporate, and industry. At present, he is teaching and mentoring engineering students in Bharati Vidyapeeth College and banking postgraduate diploma in NEET University. He has trained about 250,000 plus people in university, institute, corporate. Thank you so much. Over to you, Vijay. So thank you so much, Vicky Gautam. Oh, sorry, Amit Gautam ji, for the introduction. Now I have to invite our resource persons to Vicky Gautam to start the session. Over to you, Vicky Gautam ji. Thank you, Abhishek, and thank you, Amit, for the introduction. And thank you so much, Saksham Rozgar Society. And special thanks to our President of Saksham Rozgar Society, Ms. Jyotika Kalra, ma'am, for giving this opportunity. And good evening, everybody. तो आप सभी जैसा जानते ही हैं कि आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, विच इज़ रिलेटेड टू TDS इन टेली प्राइम। ठीक है ना। तो जो बिजनेस एंड अकाउंट्स की जो हमारी ट्रेनिंग अब तक चल रही है, उसमें ये मेरी 6th क्लास है। और इससे पहले मैंने आपको टैली का बेसिक बता चुका हूँ मैं अब सारा कुछ, कि टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और एक बेसिक अकाउंटिंग टैली में किस तरीके से करते हैं। तो आई होप आप सबको वो चीज़ें सारी याद होंगी कि हमने किस किस तरीके से टैली में अकाउंटिंग की थी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक अकाउंटिंग से एक लेवल ऊपर है। ठीक है ना। तो टैली में जो स्टैचुरी और टैक्सेशन की जो कंप्लायंसेस होती है, उसमें दो मेन चीज़ें आती हैं, एक होता है जीएसटी और एक होता है टीडीएस। तो जीएसटी वाला जो टॉपिक है वो आपका हो चुका है, जो ओम जी ने लिया था आपका टॉपिक। ठीक है। और दूसरा टॉपिक आता है आपका टीडीएस वाला टॉपिक, जो आज मेरे पास है। तो आज हम सीखने वाले हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस के बारे में भी आपने कल पिछली क्लास में सीख लिया था। उसमें आई थिंक हिमांशु मोहता जी, उनकी क्लास थी आप लोगों के साथ। ठीक है। तो आज की जो क्लास मेरे साथ होने वाली है वो प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। थ्योरेटिकल क्लास आप लोगों की कल हो चुकी है, और आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम प्रैक्टिकल, किस तरीके से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली को टीडीएस को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है ना। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है टीडीएस इन टैली प्राइम। ठीक है। मैं आपको बस रिकैप करा रहा हूँ। आपने पिछली क्लास में टीडीएस के बारे में सब कुछ पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो मैं बस आपको एक रिकैप कराने के लिए थोड़ी सी थ्योरेटिकल का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। उसके बाद हम फिर आ जाएंगे प्रैक्टिकल पे, जिसमें हम टैली के अंदर टीडीएस को किस तरीके से इनेबल करते हैं और फिर अकाउंटिंग करते हैं कैसे टीडीएस के साथ, वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है।
तो व्हाट इज टीडीएस, सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज टीडीएस। तो टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है जी। तो टीडीएस है वो अपने नाम से ही है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां पे किसी भी इनकम का सोर्स बन जाता है, ठीक है, वहीं पर टैक्स को डिडक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। दूसरा पॉइंट है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड विच इन विच द डिडक्टर डिडक्ट्स द टैक्स एट प्रिस्क्राइब रेट्स फ्रॉम पेमेंट्स मेड टू द पेई डिडक्टी एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट। तो सिंपली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, पैसे को डिडक्ट कर लेते हैं, टीडीएस को डिडक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी भी सप्लायर को या किसी भी आपने किसी से कोई हेल्प लिया, किसी कोई काम करवाया, ठीक है, और आपको उसमें मान लो आपने प्रोफेशनल फीस ली किसी इंसान से, ठीक है, तो जब आपने प्रोफेशनल फीस ली, तो फीस लेते वक्त आपको उसको 1 लाख रुपए पे करने थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, 1 लाख रुपए पे ना करके आपने उसको मात्र 90,000 पे ही दिए, 10,000 पे आपने उसकी क्या काट लिया, टीडीएस काट लिया, ठीक है। और जो 10,000 आपने वो जो उसका डिडक्ट किया है, जिसने आपको प्रोफेशनल सर्विस दी थी, और उस अमाउंट को जो हमने डिडक्ट किया है उसको बोलते हैं टीडीएस। और टीडीएस का बेसिक फंडा क्या होता है कि टीडीएस एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट डिडक्ट करती है। गवर्नमेंट चाहती है क्या, देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, जिस तरीके से हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों के जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए हमें हर महीने महीने सैलरी मिलती है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। जैसे आपने जीएसटी में सीखा था, जीएसटी की क्लास में आप लोगों ने सीखा था कि गवर्नमेंट को बहुत सारी रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास देर आर सो मेनी एक्सपेंडिचर, उनके पास बहुत सारे खर्चे होते हैं। डैम बनाना है, मेडिकल में एक्सपेंस करने हैं, डिफेंस के लिए एक्सपेंस करने हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए काम करना है, तो गवर्नमेंट को फंड की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे सरकार, हमारे गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम सारा जो भी टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स के थ्रू, ठीक है। पहले यही होता था, इनकम टैक्स होता था पहले। तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप पूरे साल जो इनकम कमाते हो, उस पूरे साल की इनकम आप उस साल पे नहीं करते, आप उसको अगले साल पे करते हो एज अ इनकम टैक्स। तो क्या होता है, उस पूरे साल में गवर्नमेंट को तो कोई पैसा आया ही नहीं। अब आप खुद सोचो, आप किसी महीने, एक महीने में काम कर रहे हो और आपको सैलरी जो है वो 1 साल बाद मिले, तो आपके एक्सपेंस किस तरीके से चलेंगे। इसी फंडे को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, कि हम टीडीएस में क्या करेंगे, जैसे ही किसी इंसान ने कोई भी इनकम जनरेट करी, उसी टाइम उस इंसान का टैक्स काट के सरकार को जमा करा दो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को अपने फंड मंथली बेसिस पे मिलते गए, ठीक है। जो भी टीडीएस होता है वो हर महीने जमा होता है, ठीक है। तो टीडीएस हमेशा आपका हर मंथ के अगली 7 तारीख तक जमा करवाना होता है। ये आप सब चीजें नोट कर लेना नोटबुक नोटपैड में। हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछूं और आप प्राइज मनी जीत पाओ। तो ये जो भी मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, कब क्या जमा होता है, क्यों जमा होता है, तो ये आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। और फ्यूचर में आपको सब याद भी रखना है। तो टीडीएस कब जमा होता है, हर मंथ के नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख से पहले पहले, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, गवर्न अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो इसको गवर्न करता है टीडीएस को, ठीक है जी। लेकिन अभी हाल में ही अभी आप देखोगे हमारा एक नया इनकम टैक्स अभी आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है ना। अभी हमारा नया इनकम टैक्स आ चुका है, अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो उसमें जो आपके सेक्शन है वो अलग अलग है, बट अभी के लिए हमारे पास क्या है, पूरी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अभी हम इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट of income to the account of the payee or at the time of payment whichever is earlier। ये आपने कल की क्लास में जरूर सीखा होगा, तो अगर किसी को याद है तो आप बता सकते हो। एनीवन वांट टू गिव आंसर, कि टीडीएस को डिडक्ट मैं कब करते हैं। कल तो साथ हूँ। टीडीएस को सर मंथ में डिडक्ट करते हैं, और ये सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, रेंट इसमें कट जाता है जब पेमेंट होती है तब। नहीं नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। और कोई बताना चाहेगा। नहीं, कल आपको पढ़ाया होगा इसके बारे में 100%। चलो कोई नहीं, टीडीएस कब डिडक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। टीडीएस देखो, दो चीजें होती है। एक, जब आपके पास कोई भी एक्सपेंस का बिल आता है,
ठीक है। और दूसरा, जब आप उस एक्सपेंस की पेमेंट करते हो, ये दो चीजें होती है, ये दो दो फैक्टर आपको ट्रिगर होने चाहिए हमेशा। एक्सपेंस का बिल मेरे पास कब आ रहा है, ठीक है, और दूसरा आप पेमेंट कब कर रहे हो पार्टी को। इन दोनों ही केसों में जो भी पहले होगा, टीडीएस तभी जमा होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई। आपने पेई को अपने एक्सपेंस में बुक कर लिया, मतलब आपने इनकम दिखा दी पेई की कि भैया आप इनकम जनरेट कर ली, आपने अपनी टैली में एंट्री बुक कर दी कि ये मेरे पास ये एक्सपेंस हुआ है, मुझे मिस्टर ए को इतने पैसे देने हैं। इसका मतलब क्या, आपने मिस्टर ए की इनकम बुक कर दी टैली के अंदर। तो पहला काम ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप मिस्टर ए को पेमेंट कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो भी पहले होगा, टीडीएस तभी जमा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है ना, तो दोनों ही पॉइंट से जो पहले पॉइंट हो जाता है हमें तभी टीडीएस काटना होता है। ठीक है ना, या तो बिल की बुकिंग आपने पहले कर दी या आपने पेमेंट पहले कर दी, जो भी दोनों में से पहले होगा टीडीएस आपको तभी डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल बुकिंग का मैंने आपको बता दिया। और दूसरा कब है, अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट करी, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फीस की, तो आपने 1 लाख रुपए का बिल था, तो आपको 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करनी है, आपको पहले ही टीडीएस काट लेना है प्रोफेशनल चार्जेस का। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, या तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग द एक्सपेंडिचर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता था? बस एक बार आप थम्स अप कर दो या कुछ बता दो मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शीतल का मैसेज आ गया है कि शी गॉट इट, या। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द डिडक्टी फेल्स टू फर्निश पेन। इफ द डिडक्टी, डिडक्टी मतलब कौन होता है, ये भी आपने कल पढ़ा होगा, बताओ। हु इज डिडक्टर, हु इज जिसका डिडक्टी। टैक्स कटता है सर, जिसका टैक्स कटा। हाँ, जिसका टैक्स कटा वो डिडक्टी, और जिसने टैक्स को काटा वो होगा डिडक्टर। ठीक है जी, जिसका टैक्स कटा वो डिडक्टी, जिसका टैक्स काटा, जिसने टैक्स काटा वो होगा डिडक्टर। तो इफ द डिडक्टी फेल्स टू फर्निश पेन, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ 20%। ये लाइन आप जरूर याद रखना, इस लाइन का अभी अभी क्लास के टाइम पे इसका रूल आने वाला है, मैं पहले इंटीमेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, टीडीएस को इसकी इस वाली पॉइंट को ना हम नीचे वाली लाइन से रिलेट करने वाले हैं। तो पहली आपने हमने लाइन पढ़ ली कि इफ द डिडक्टिव फेल्स टू फर्निश द पेन, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द प्रिस्क्राइब रेट और 20%। और नेक्स्ट लाइन क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर दैट इज कॉल्ड 10 इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, while permanent account number PAN of the deductee is required for TDS deduction and credit। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि अगर आपको किसी का भी टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब काटना है, तो आपको 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसकी जरूरत पड़ेगी 10 नंबर की, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। लेकिन आपको काटने के लिए 10 नंबर की जरूरत है, लेकिन कटने के लिए जिसका आप टीडीएस काटोगे, तो उसके लिए भी तो उसका एक अकाउंट नंबर चाहिए होगा। मुझे मिस्टर ए का टीडीएस काटना है, तो मैं अपने 10 नंबर से उसका टीडीएस काटूंगा, मेरे पास 10 नंबर होना जरूरी है उसको टीडीएस काटने के लिए। ठीक है, लेकिन वही मिस्टर ए के पास क्या होना जरूरी है, पैन नंबर, क्योंकि जो टीडीएस कटता है ना वो उसके पैन नंबर पे ही डिपॉजिट हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हमेशा याद रखना, टैक्स को काटने के लिए, टीडीएस को काटने के लिए 10 नंबर की जरूरत पड़ती है, और टीडीएस को कटवाने के लिए पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। और हाँ, ऊपर वाली लाइन बता दूं अब, उसमें ये बोल रहा है कि अगर डिडक्टी ने आपको पैन नंबर नहीं दिया, अगर डिडक्टी ने पेन नंबर नहीं दिया, क्योंकि देखो पेन के ऊपर ही टीडीएस कटता है। जो जो आप पेन लेते हो ना, आप जब टीडीएस काटते हो तो पेन के अगेंस्ट में काटते हो, और फिर वही उसको टीडीएस का क्रेडिट उसको मिल जाता है जब वो अपनी आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है। लेकिन कई बार कैसा क्या होता है कि कोई अपना टीडीएस देता ही नहीं इंसान को, कि मेरे पास पेन नंबर नहीं है, मैं पेन नंबर नहीं दूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि 20% का टैक्स लग जाता है। मान लो कॉन्ट्रैक्ट का रेट है 1% इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, तो वो 1% टीडीएस नहीं कटेगा, अगर वो पेन नंबर नहीं देगा तो 20% कटता है। समझ रहे हो, तो हमेशा हाइयर टैक्स कट जाता है, तो इसीलिए पेन नंबर उसको देना पड़ता है, मैंडेटरी। अब आता है टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी, कि टीडीएस अप्लीकेबल कब कब होता है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नेचर ऑफ एक्सपेंस है जहाँ पे टीडीएस कटता है। ठीक है ना, तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए सारे 4 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला, प्रोफेशनल प्रोफेशनल फीस,
जैसे प्रोफेशनल फीस आप किसी से लेते हो, प्रोफेशनल सर्विस लेते हो, तो प्रोफेशनल सर्विस की जब आप पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस चल रहा था और मैंने क्या करा, सीए से टैक्स ऑडिट की फी पे करी। तो टैक्स ऑडिट की जो मैं प्रोफेशनल्स को जो फी, देखो सीए क्या है, सीए एक प्रोफेशनल है, और जब मैं सीए को फी पे करूंगा प्रोफेशनल फी, तो मैं टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करूंगा। ठीक है ना, तो वो होगा एक नेचर ऑफ एक्सपेंस। दूसरा रेंट, अगर मैं किसी को रेंट दे रहा हूँ तो मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंट एक तरीके से उस इंसान की इनकम है, और जब उसकी इनकम जनरेट हो रही है, जब उसका सोर्स जनरेट हो रहा है, तो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पेयर की। ठीक है, जो पेयर मतलब जो पैसे पे कर रहा है। और वही सेम प्रोफेशनल फीस है, वो सीए के लिए इनकम है, तो आपको क्या करना है, उसकी इनकम में टैक्स पहले ही काट के आपको टीडीएस के रूप में जमा करवाना है गवर्नमेंट को। तीसरा केस आता है कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट क्या हो गया, आपने अपनी कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया। एग्जाम्पल, मैंने अपने कंपनी के लिए, अपने स्टाफ के लिए मैंने क्या करा, कपड़े बनवाए, उनका एक मैंने क्या करा, यूनिफॉर्म बनवाया। यूनिफॉर्म बनवाने का मतलब क्या है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया कि मेरे पास 50 एम्प्लॉई है, और 50 एम्प्लॉय की मेरे को पूरा उसका यूनिफॉर्म चाहिए, शूज चाहिए, मेरे ही कंपनी के नाम के। जैसे मन्नत फर्नीचर है अपनी कंपनी, तो मन्नत फर्नीचर के नाम के मेरे को पूरा उसका यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है ना, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वाला नेचर हो गया। जब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करूंगा अपने वेंडर को, तो मुझे उसको पे क्या करना पड़ेगा, टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी रेट अभी हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। लास्ट है आपका कमीशन, कमीशन एटसेट्रा। कमीशन का मतलब क्या हुआ, आपने सेल्स पे किसी को कमीशन दिया कि तू मेरी सेल्स करा दे, मैं तेरे को कमीशन दूंगा। ठीक है ना, तो इससे लाइफ इंश्योरेंस वाला कमीशन वेरी फेमस। तो ये सारे क्या है, कमीशन है। जब आप कमीशन दे दो तो कमीशन पे टीडीएस कट जाता है। अगर जैसे आपने एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस ले लो, आपने किसी ने, आपने लाइफ इंश्योरेंस करके दिया किसी को, तो आपको उस रेट पे ना कमीशन मिलता है। तो जो कमीशन देती है वो एलआईसी देती है। ठीक है, तो एलआईसी क्या करती है, उस कमीशन पे टीडीएस काट देती है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों पे क्यों एलआईसी क्यों काटती है, क्योंकि एलआईसी पेमेंट कर रही है। जो पेमेंट करता है टीडीएस हमेशा वही काटता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम जा रहे हैं रेट्स के अंदर, मतलब टीडीएस की क्या रेट है, क्या लिमिट है। और मैं थोड़ा फास्ट इसलिए भी चल रहा हूँ, रिलेट्स टू थ्योरेटिकल, क्योंकि आपकी कल क्लास हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल भी कराना है ना। लेट्स गो टू टीडीएस सेक्शन एंड रेट्स। अब टीडीएस में सेक्शन कौन से हैं जो अभी हमने पिछले पढ़े, क्या क्या नेचर ऑफ एक्सपेंस होते हैं, तो उसके हमारे रेट्स क्या होते हैं इनकम टैक्स के, अभी हम वो भी पढ़ने पड़ेंगे। अब ये थोड़ी है कि 1 लाख रुपए का प्रोफेशनल चार्ज लिया है तो अपनी मर्जी से कोई भी टीडीएस काट दूंगा। ठीक है ना, तो एक स्पेसिफाइड रेट डिसाइड है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस नेचर के एक्सपेंस में इतने रेट का टीडीएस कटेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला था 192। अब 192 किससे रिलेट करता है, सैलरी के हिसाब से। अब सैलरी पे भी टीडीएस कटता है, कटता है किस हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से। अब स्लैब रेट क्या होता है, ये सब आपने सुना ही होगा, अभी इनकम टैक्स की बात जब चली ही होगी तो आप सभी ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है। वो टैक्स क्या है, वो टीडीएस वाला ही टैक्स होता है। ठीक है जी, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपकी 12 लाख रुपए सैलरी से नीचे सैलरी है तो आप पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन वही आप 12 लाख से ऊपर चले जाओगे तो आप पे क्या होगा, टीडीएस की डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, एज पर द स्लैब रेट। दूसरा आता है 194 सी। अब सी, सी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है, देखो अब कॉन्ट्रैक्टर में एक बात याद रखना, जैसे आपने टाइप ऑफ पर्सन पढ़े होंगे अपनी प्रीवियस क्लास में कि कई तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, 7 तरीके के लोग होते हैं पूरे ओवरऑल, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, बीओआई, एओपी। इस तरीके की 7 लोग होते हैं हमारे पूरे इसमें कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है जी। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होते हैं उन पे 1% का टीडीएस कटता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नेचर की क्या है, इनकम है। ठीक है ना, और 2% करता है अदर्स, अदर्स पर्सन, मतलब जो इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है उन पर 2% का टीडीएस कटेगा। ठीक है जी। सिंपल सा मेथड बताऊं, जैसे मैं हूं, अब मेरे सामने मैंने किसी से प्रोफेशनल सर्विस के चार्ज लिए, अगर जिससे मैंने चार्ज लिया अगर वो कंपनी है, तो कंपनी का मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं होगी तो मैं कितने परसेंट का टीडीएस काटूंगा, 2% का टीडीएस काटूंगा। ठीक है ना, अगर वही मैंने प्रोफेशनल सर्विस किसी इंडिविजुअल आदमी से ली है, सिंगल पर्सन है वो, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना कुछ है, वो एक इंडिविजुअल है,
तो मैं उस पर टीडीएस कितना डिडक्ट करूंगा, 1%। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1% का टीडीएस डिडक्ट करना है, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर आपको 2% का टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है जी। और हाँ, इसकी लिमिट क्या है, अगर आप सिंगल पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो तो 30,000 रुपए की लिमिट है, और अगर पूरे साल की लिमिट चेक करोगे 1 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब ये हुआ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करी, मान लो 32,000 से ऊपर चला गया सिंगल पेमेंट, तो फिर मेरा टीडीएस क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर मैंने 25,000 रुपए करके 3 पेमेंटें करी तो उसमें मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर नहीं हुई और एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर नहीं गई, तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट आता है 194H कमीशन वाला। कमीशन का बिल्कुल सिंपल सा रूल है, 20,000 रुपए तक की वैल्यू होगी कमीशन देने की तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 20,000 से ऊपर की वैल्यू होगी तो 2% का टीडीएस कट जाएगा अंडर सेक्शन 194H। नेक्स्ट आता है 194I। आई का मतलब क्या, रेंट। अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, अभी देखो आपके पास हाउस प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ ना होंगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम रेंट पे करते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं। तो अब इस पे टीडीएस कितना काटेंगे, अगर 6 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू होती है पूरे साल में, इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 पर मंथ अगर आप किसी को रेंट पे करते हो तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 50,001 रुपए भी अगर आप किसी को रेंट पे करते हो तो टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी आप पे आ जाएगी, 10% का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा रेंट पे। ठीक है जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट 194J। अब 194J क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल सर्विसेज। अब इसमें क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि सीए की जो फीस होती है, अब आपने 50,000 की लिमिट है, मान लो आपने 70,000 रुपये दिए तो आपको टीडीएस को डिडक्ट करना पड़ेगा, कितने रेट से, 10% के रेट से। ठीक है जी। तो ये सारी क्या है, लिमिट्स हैं, इस लिमिट्स के नीचे होगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, लेकिन जैसे लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आपको टीडीएस क्या करना होगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं टैली के ऊपर। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, अब हमारा काम स्टार्ट होने वाला है टैली पे कैसे सेटअप करना है इसको, टीडीएस को। तो इस जो अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है, अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, और मुझे थम्स अप दे दो कि मुझे समझ आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो प्लीज अपने रिव्यू, शीतल जी को समझ आ गया, उनका थम्स अप आ चुका है, और गुलशन जी का भी आ गया। ठीक है जी। नैन्सी का आ गया, प्रदीप सर का आ गया, रोशनी का आ गया। ठीक है, मजा आएगा, देखो मजा आएगा क्लास में। मैंने प्राइज भी रखे हैं आप लोग के लिए, मनीषा का आ गया, एक वन प्लस सीपीजी है उनका भी आ गया। और अपने नाम से ज्वाइन करो ना मीटिंग। ठीक है ना, प्राइस कैसे दूंगा आपको मैं, अब वन प्लस फोन को थोड़ी प्राइस दूंगा इन केस अगर आप जीतते हो। ठीक है जी। अब देखो, अब आएगा टेली में मजा। ठीक है जी, साक्षी जी का मैसेज आ गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर। अब देखो, अब सबसे पहले क्या बोलते हैं, टेली में सेटअप करना है हम लोगों को टीडीएस के लिए। तो सबसे पहले क्या बोलता है, इनेबल टीडीएस इन F11 स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन। स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन वाले फीचर में जाना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टैली ओपन करनी पड़ेगी, और आप सभी को पता है मेरी टैली कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास तो है नहीं, तो आप लोग को मैंने पहले ही सिखा दिया था कि टैली की। देखो डेस्कटॉप पे आया मैं, SRS क्लासेस में आ गया, और यहाँ पर हमने जो डाटा सेव किया था ना, मैं उसी में काम करता हूँ। मन्नत फर्नीचर जो डाटा बनाया था ना मैंने पहले, जस्ट मुझे उसी को ओपन करना है। यहाँ से मैंने पाथ को कॉपी किया, ठीक है, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था, फिर मैंने कॉपी किया कंट्रोल C से, और फिर दोबारा मैंने टैली को ओपन किया। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है हम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर अब फिर भी किसी को डाउट हो, या पुरानी क्लासों में या फिर आज में, तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, अब हमारी टैली ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद हमने कंटिन्यू एजुकेशन मोड करना है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद आपको कंट्रोल V करके पेस्ट करना है अपना जो पाथ है, जो रूट है आपका डाटा का, एंड देन यू हैव टू एंटर। आपकी कंपनी शो होने लगी, मन्नत फर्नीचर जो हमने बना रखी थी पहले। जैसे आपकी कंपनी शो होगी, आपको फिर से एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हैं आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। ठीक है जी। अब आते हैं टीडीएस का काम स्टार्ट करने। तो पीपीटी पे सबसे पहले क्या बोला गया हमें, इनेबल टीडीएस इन F11। ठीक है जी, F11 में टीडीएस इनेबल होगा, कोई बात नहीं, F11 कर देंगे। अब जैसे ही आपने टैली का इंटरफेस ओपन करा, गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब आपको सिंपल उन्होंने क्या बोला, F11 प्रेस करना है।
तो जो आपकी फंक्शंस वाली जो की है, जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं, वहां से आपको F11 प्रेस करना है। मैंने F11 प्रेस करा, मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ गई। डिटेल्स आने के बाद उन्होंने हमें क्या बोला पीपीटी में, स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन के कंप्लायंस में जाके आपको टीडीएस इनेबल करना है। कर देंगे जी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग है, देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है टैक्सेशन, कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये रहा टैक्सेशन, ठीक है। तो एंटर एंटर करके मैं टैक्सेशन पे आ जाता हूँ। मैं आ गया टैक्सेशन में। अब टैक्सेशन में को जीएसटी इनेबल करना है, बट मुझे जीएसटी इनेबल नहीं करना, तो एस्केप से बैक हो जाओ और फिर एंटर करके बाहर आ जाओ। अब आता है ये रहा, देखो एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस। आप सभी को दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? यस सर। इनेबल टैक्स डिडक्टेड आउट सोर्स जो आपको दिख रहा है, वहां पे नो प्रेस हो रखा है। अब हमें क्या करना है, हम टीडीएस की वर्किंग करने वाले हैं, तो हमें टीडीएस को इनेबल करना होगा, ठीक है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, यस करके एंटर कर दूंगा। अब यस करके मैंने जैसे ही एंटर किया, मेरे पास एक अलग इंटरफेस आया। उसने मुझसे क्या पूछा, कंपनी टीडीएस डिडक्टेड डिटेल, आप अपने कंपनी की टीडीएस की डिटेल बताओ। बता देंगे जी। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और 10 नंबर वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है जी। जब आप 10 अप्लाई करते हो ना, तो 10 आने से पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो 10 नंबर ही होता है। तो ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 10 नंबर ही है। तो अभी हमारे पास रियल में 10 नंबर नहीं है, तो मैं सैंपल बेसिस पे 10 नंबर ले लेता हूँ। एग्जाम्पल DE LK टू ए टू ए टू सी। ये मैंने ना एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है 10 नंबर, ठीक है। जो कंपनी आप कभी काम करोगे या कंपनी बनेगी, तो 10 जो होगा वो अलग होगा। ये मेरा फेक 10 नंबर है, ठीक है, क्योंकि मेरे को टीडीएस इनेबल करना है। 10 नंबर का होता है 10 नंबर, प्लीज रिमेंबर या। उसके बाद आपको इसको कॉपी करके, यहाँ पर 10 पूछ रहा है, सेम पेस्ट कर देना, वो 10 ही पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि डिडक्टर टाइप, डिडक्टर कौन होता है, जल्दी बताओ फटाफट। जो पेमेंट काट करता है। हाँ, जो पेमेंट करता है, डिडक्टर मतलब जो पेमेंट को कट करता है। तो यानी कौन, इंडिविजुअल और एचयूएफ कंपनी, हम कौन से थे, हम प्रोप्राइटरशिप थे, ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप मतलब इंडिविजुअल थे हम लोग, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल पे एंटर कर देंगे। अब आ रहा है डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, ये ब्रांच डिवीजन है तो उसका डिटेल डालना है। हमारे पास कोई ब्रांच डिवीजन नहीं है अभी। ऑल्टर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अभी हमें किसी को ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे, तो इस फंक्शन आपको नो नो कर देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद शॉर्टकट की टू सेव इन टैली क्या थी, जल्दी बताओ। एक बार में सेव होल्ड। करने की शॉर्टकट क्या थी, कंट्रोल A, कंट्रोल A। आप लिख लिया करो नोटपैड पे, जो शॉर्टकट की मैंने भेजी थी वैसे पीडीएफ फॉर्म में, बट आप ना लिखते भी रहा करो नोटपैड पे। कंट्रोल से क्या होता है, सेव हो जाता है। अब आपका क्या हो गया, टीडीएस आपका इनेबल हो चुका है आपकी टैली में, ठीक है जी। अब आते हैं पीपीटी पे। अब ये कह रहे हैं कि पार्टी को क्रिएट करिए और पैन नंबर डालिए और एक्सपेंस को क्रिएट करिए, जिसकी आपको एंट्री करनी है, वो भी कर देंगे। चलो जी आ जाओ। लेकिन पार्टी है कौन सी, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा। ये रही। अब देखो पहली एंट्री हमारे सामने क्या आ रही है, प्रोफेशनल फीस विद टीडीएस, मतलब प्रोफेशनल फी हमें पे करनी है टीडीएस के साथ। तो देखो आप क्या सामने आ रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2026, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2026 को क्या हुआ, बीइंग प्रोफेशनल फीस ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज बुक्ड टू मिस्टर ए, ठीक है जी। मिस्टर ए से हमने क्या करा था, प्रोफेशनल फी, एक हमने प्रोफेशनल फी का खर्चा लिया। मतलब मिस्टर ए ने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी, जिसके अगेंस्ट में मुझको उसको पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए। और उसका जो बिल आया उसका इनवॉइस नंबर था 001, कोई दिक्कत नहीं 001। और नेक्स्ट आ रहा है आपका टीडीएस डिडक्टेड एट द रेट 10%, 10,000 रुपीज, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस कितना कटता है, 10%। और लिमिट कितनी होती है प्रोफेशनल फीस पे, जल्दी बताओ। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर प्रोफेशनल फीस? सर 50,000 है। 50,000, यू आर एब्सोल्युटली राइट साक्षी। 50,000 रुपए की लिमिट होती है, और यहाँ पर क्या है, 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीडीएस हमको डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और हाँ, जब भी लिमिट क्रॉस होती है तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस लगता है। ऐसा नहीं कि 50,000 पे नहीं लगेगा, अगले 50 पे लगेगा, ऐसा नहीं है। टोटल अमाउंट पे टीडीएस लगेगा, ठीक है जी। तो आप देखो एंट्री क्या हो रही है, डेबिट, प्रोफेशनल फी अकाउंट डेबिट, मतलब जो मेरा एक्सपेंस हुआ है, जो मेरा खर्चा हुआ है, वो पूरा 1 लाख रुपए का हुआ है, ठीक है जी। और क्रेडिट
अब डेबिट क्रेडिट आप लोग सीख चुके हो तो बार बार मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि आपने पढ़ा था ना गोल्डन रूल्स में, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो वो ये डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस है, मतलब हमारे प्रोफेशनल फी का जो एक्सपेंस है वो डेबिट कर रखा है मैंने। तो प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए का जो मेरा एक्सपेंस था वो मैंने डेबिट कर दिया। और क्रेडिट टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, जो मुझे फी पे करनी है, जो मुझे टीडीएस पे करना है प्रोफेशनल फीस के ऊपर, उसे मुझे करना है क्रेडिट। अब क्रेडिट क्यों करना है? क्रेडिट मुझे इसलिए करना है, लाइबिलिटी मुझे इसलिए बनानी है क्योंकि 10,000 पे मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है इसलिए वो मेरी क्रेडिट लाइक लाइबिलिटी बन जाएगी, ठीक है जी। तो क्रेडिट में क्या हुआ, एक लाइबिलिटी राइज हो गई। और टू मिस्टर ए पार्टी अकाउंट, अब मिस्टर ए को देखो मुझे कितने पैसे में देने देने के लिए बुक्स में खड़ा कर रहा हूँ, 90,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए का मैंने क्या कर दिया, टीडीएस को डिडक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब लेट्स गो टू द टैली। तो ये एंट्री हमको सेम एंट्री करनी है टैली के अंदर। और टैली में जब मैं मिस्टर ए को पेमेंट करूंगा तो टैली में ऑटोमेटिक 90,000 पे आ जाना चाहिए। अगर टैली में 90,000 पे नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो जी लेट्स स्टार्ट। अब आ गए हम टैली के अंदर। सबसे पहले हमें लेजर बनाना है मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए का लेजर कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको पहले सिखाया था। क्रिएट में, मास्टर में देखो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्रिएट, तो आपको क्रिएट में एंटर करना है। एंटर करते आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है, ठीक है जी। अब लेजर में देखो मिस्टर ए, मिस्टर ए, ठीक है जी, सॉरी, मिस्टर ए आपने डाल दिया। मिस्टर ए के बाद अब मिस्टर ए से मैं मतलब सर्विस ले रहा हूँ। तो मिस्टर ए को मुझे पैसे देने हैं, और अगर मुझे मिस्टर ए को पैसे देने हैं तो वो मैं क्रेडिटर बनेगा, डेटर बनेगा, क्या बनेगा? क्रेडिटर बनेगा, सैलरी क्रेडिटर। एडिटर। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्रेडिटर बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। बाकी वो बिल्स टू बिल मेंटेन ये सब मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपको उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे देखो स्टैच्यूरी डिटेल्स के अंदर एक ऑप्शन आपके पास पॉपअप हो रहा है, दिस इज रिलेटेड टू इस टीडीएस डिडक्टेबल डिडक्टेबल, मतलब ये कह रहा है कि मिस्टर ए टीडीएस डिडक्ट करवाएगा, ऑब्वियसली करवाएगा, क्योंकि इसको हम भैया प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करने वाले हैं और उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट करना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो हमें यहाँ पे टीडीएस को इनेबल करना पड़ेगा मिस्टर ए के रिगार्डिंग में, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे देखो मिस्टर ए का टीडीएस हमने काटा हुआ है ना, ये देखो, ठीक है जी। यहाँ पे देखो टीडीएस हमने डिडक्ट कर रखा है, तो वहां पर हमें टैली में इनेबल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर देंगे। यहाँ पे आपको यस करना होगा, यस मतलब वाई, एंटर। अब अब मिस्टर ए जो है वो क्या है आप बता सकते हो? देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं, इन्हीं में से कोई मिस्टर ए होगा, या वो एओपी है, देखो राइट साइड में दिख रहा है आपको, वो देखो, ये देखो, ये या वो गवर्नमेंट है, क्या वो फर्म है, रेजिडेंट फर्म है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ है, नॉन रेजिडेंट है, लोकल अथॉरिटी है, पार्टनरशिप फर्म है, मतलब जितने भी तरीके के लोग होते हैं ना यहाँ पे सब दिख जाएंगे, ठीक है जी। हमारे लिए बट क्या है, वो एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब इंडिविजुअल है, वो भी रेजिडेंट, मतलब बाहर का नहीं है, इंडिया का ही है। तो हम जाएंगे इंडिविजुअल में, कहाँ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट, ये रहा इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट पूछ रहा है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, क्या हमें सेम वाउचर में ही टीडीएस को डिडक्ट करना है? मतलब ये कि जब हम एंट्री बुक करेंगे तुरंत उसी टाइम हम टीडीएस को एंट्री को बुक कर दें, या फिर नेक्स्ट एंट्री में अलग से एक एंट्री मारे? तो हम एक्स्ट्रा एंट्री क्यों करेंगे, हम सेम वाउचर में ही टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। तो मैंने इसको यस कर दिया, ऑटोमेटिक वैसे यस ही होता है। ऑल आइटम, ऑल आइटम का मतलब ये है कि जिस जिसमें टीडीएस डिडक्ट हो, टीडीएस की लाइबिलिटी बनेगी, जिस जिस एक्सपेंस नेचर एक्सपेंस में, उस सब आइटम में टीडीएस डिडक्ट करोगे, बिल्कुल ही सब में करेंगे, ऑल आइटम्स में करेंगे। फिर यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, नहीं हमें एडवांस एंट्रीज में नहीं जाना है। बाकी आप मिस्टर ए की डिटेल भर सकते हो, एड्रेस एड्रेस सब ठीक है। अब सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल ए, ठीक है जी। अब मिस्टर ए का लेजर बन चुका है, अब मिस्टर ए का लेजर बन चुका है, बिल्कुल सही है। आ जाओ यहाँ पे, मिस्टर देखो मिस्टर ए का लेजर बन चुका है। अब हमारे पास दो लेजर और बनाने हैं, प्रोफेशनल फीस का लेजर और टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस का लेजर। तो प्रोफेशनल फी का लेजर बनाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल फीस। अब प्रोफेशनल फीस हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, बताओ जल्दी, कौन सा क्या चीज होगा, वो ग्रुप किस ग्रुप में आएगा? है, बोलो बोलो। प्रोफेशनल फीस एक मन्नत फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है?
क्या हो गया? एक्सपेंस, यस एब्सोल्युटली एक्सपेंस। इतना सोचना क्यों पड़ रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूँ एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। अभी अभी हम जीएसटी नहीं कर रहे, जीएसटी वाली क्लास आपकी पहले ही हो चुकी है, तो अभी हम टीडीएस पे काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जीएसटी को नोट अप्लीकेबल कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद जब जीएसटी को नोट अप्लीकेबल करने के बाद एक हमारे पास आ रहा है सेट ऑल्टर अदर स्टैच्यूटरी डिटेल्स। कि आपकी इसके टैक्स जीएसटी के अलावा कोई स्टैच्यूटरी डिटेल्स को इनेबल करना है, बिल्कुल करना है जी। क्या करना है? टीडीएस अप्लीकेबल करना है इस एक्सपेंस के अंदर, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। ठीक है जी। जैसे आपने यस किया, अब ये कह रहा है कि इस टीडीएस अप्लीकेबल ऑन प्रोफेशनल चार्जेस, प्रोफेशनल फीस में क्या टीडीएस रेट होना चाहिए? ऑब्वियसली यस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्पेस एंटर प्रेस करके यहाँ पे अप्लीकेबल कर दिया। अब अप्लीकेबल करने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, मतलब इसका नेचर क्या है। अब नेचर ऑफ पेमेंट हम क्यों करते हैं, देखो हमें बताना भी तो पड़ेगा ना कि कितने रुपए का रेट हमें काटना है, प्रोफेशनल फीस पे कितने रेट काटना है। देखो गवर्नमेंट क्या आती है, गवर्नमेंट रेट को बदलती रहती है। कभी 10% कर सकती है, कभी 2% भी कर सकती है, कभी 5% कर सकती है। तो गवर्नमेंट हमेशा चेंज करती रहती है, अमेंडमेंट्स करती रहती है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें टैली में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। जो भी रेट होगा, आप लेटेस्ट रेट हमें यहाँ पे फीड करना होता है। तो अभी हमारा प्रोफेशनल फीस पे कितना रेट था, जल्दी बताओ। 50,000। 50,000 रुपए की लिमिट थी, लेकिन टीडीएस का 10%। रेट कितना था? 10%। 10%। 10%। 10% है, तो हमें नेचर ऑफ पेमेंट्स के अंदर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्रिएट पे एंटर किया, उसने पूछा नाम कि किस नेचर का एक्सपेंस है, तो लिखो आप प्रोफेशनल, प्रोफेशनल चार्जेस। ठीक है जी। प्रोफेशनल चार्जेस का हमारा क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट है। मतलब क्योंकि देखो नेचर मतलब क्या है कि पेमेंट जो कर रहे हो किस नेचर की है, प्रोफेशनल नेचर की है। तो आप प्रोफेशनल नेचर ही डाल दो, ये लो प्रोफेशनल नेचर। ठीक है जी। अब पूछ रहा सेक्शन, मतलब टीडीएस का कौन सा सेक्शन था, जल्दी बताओ। 94J। 4J। हाँ। अब 194 जी। हाँ, पेमेंट कोड मतलब होता है जब टीडीएस को डिपॉजिट करते हो ना, तो एक कोड आता है, तो वो 194J होता है। ठीक है, मैं आपको इस रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। रेमिटेंस कोड डालने की जरूरत नहीं है। अब रेट फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ विथ पेन, विथ पेन होगा तो कितना परसेंट कटेगा टीडीएस? 10%। और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को हटा के, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, मतलब कंपनी है या कोई और भी कोई और एंटिटी है, तो उसके लिए भी प्रोफेशनल फीस का रेट कितना है? 10% है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के केस में अलग होता है, इंडिविजुअल के एचयूएफ के लिए 1% और बाकियों के लिए 2% होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। क्योंकि प्रोफेशनल फीस में ऐसा कुछ भी सेपरेशन नहीं है, सबके लिए 10% है। तो मैंने 10% ले लिया। ठीक है, 10% लेने के बाद अब ये पूछ रहा है कि थ्रेश होल्ड या एग्जेम्पशन लिमिट, कितनी लिमिट थी हमारी प्रोफेशनल चार्जेस में? 50,000। 50,000, बिल्कुल सही है। 50,000 को एंटर करो, एंटर एक्सेप्ट कर दो। हमें बैंक डिटेल तो देनी थी, प्रोफेशनल का एंटर करके आपको सेव कर देना है। अब हमारा क्या हुआ, प्रोफेशनल फीस का भी हमारा लेजर बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो प्रोफेशनल फीस का भी लेजर बन चुका, मिस्टर ए का भी लेजर बन चुका। अब टीडीएस का लेजर बनाना कौन सा, 194J, वो भी बना देंगे। टीडीएस का लेजर बना देंगे, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस। ठीक है जी। अब टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस किस में आएगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस। अरे वाह, किसने टीडीएस बताया ये? ड्यूटी ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, क्योंकि ये टैक्स है ना, टीडीएस इज ऑल्सो अ टैक्स। तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये तो टाइप ऑफ ड्यूटी है या टाइप ऑफ टैक्स है, वो क्या है, जीएसटी है या टीडीएस है? तो ये हमारा टीडीएस है, तो मैंने टीडीएस पे एंटर कर दिया। अब नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट अभी हमने बनाया था ना, क्या था? प्रोफेशनल नेचर का है। क्या है? प्रोफेशनल नेचर का। तो प्रोफेशनल नेचर एंटर कर दो। यहाँ पे कुछ सेव करने की जरूरत नहीं, एंटर एंटर और एंटर। अब आपका क्या हुआ है, आपके तीनों लेजर बन चुके हैं। क्या हुआ, तीनों लेजर आपके बन चुके हैं। तो हम इसको बैक करके एग्जिट हो जाएंगे, एग्जिट 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 एग्जिट। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास मटेरियल तैयार हो चुका है, अब हमें खाना बनाना है। ठीक है जी। अब हमारे पास सारे लेजर्स बन चुके हैं, मतलब सारे लेजर हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें एंट्री करनी है। कोई नहीं, एंट्री भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 26 की डेट है। ठीक है जी, आ जाओ।
तो हमें कहाँ जाना होगा, वाउचर्स में। कहाँ जाना होगा, वाउचर्स में, क्योंकि जब एंट्री कहाँ से होती है, ये सब मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ सारी चीजें, दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है जी, वाउचर्स में आपको एंट्री करनी है। अब हाँ, एक्सपेंस की एंट्री हमेशा हम जनरल वाउचर से यूज करते हैं। जनरल वाउचर वो F7 शॉर्टकट की, राइट साइड में देखो आपको 7 में दिख रहा होगा, F7 प्रेस कर दिया। ठीक है जी, अब आते हैं एक्सपेंस के ऊपर। तो देखो डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है प्रोफेशनल फी 1 लाख रुपीज। कोई बात नहीं, डेबिट कर देंगे प्रोफेशनल, प्रोफेशनल फी, TDS नहीं, प्रोफेशनल फीस। तो प्रोफेशनल फी जो हमारा एक्सपेंस था वो कितने का था, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कर दिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या था, क्रेडिट में TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, कोई बात नहीं। फिर आगे यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, CR प्रेस कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे डालते हैं हम TDS ऑन प्रोफेशनल चार्जेस। अब बताओ यहाँ पे TDS कितना आना चाहिए, 10,000 10 पहले रुपए। नहीं, पहले आपको यहाँ पार्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पार्टी कौन थी, जल्दी बताओ। मिस्टर मिस्टर ए, ये मिस्टर ए था। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं मिस्टर ए को अगर सिलेक्ट करूंगा, जो बताएगा उसको मिलेगा इनाम। लेकिन सुनो, मतलब कंडीशन है, अभी इस एंट्री के अंदर इनाम मिलेगा, लेकिन उसको 2 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। पहला अमाउंट और एक दूसरा एक और क्वेश्चन है, जो दोनों क्वेश्चन के आंसर देगा मैं उसको ही इनाम दूंगा। ठीक है, तो प्लीज बी रेडी। अब मुझे पहले बताओ फटाफट, इसमें मिस्टर ए में कितना पैसा आएगा। सर 90,000। 90,000। शीतल ने 90,000। बताया 90,000 रुपए, शीतल ने पहले आंसर दिया 90,000 रुपए आएगा, बिल्कुल ठीक है। और कि दूसरा किसने आंसर दिया, फटाफट सर बता दो। मेरा मैंने कंडीशन जवाब है। नहीं दिया है हैं? सर, मैंने नहीं नहीं, जवाब नहीं दिया है, किसी और। अच्छा किसी और ने दिया है, किसने दिया 90,000 रुपए का गुलशन जवाब। अच्छा गुलशन ने, वाह गुलशन, 90,000 आना चाहिए भाई साहब, गुलशन की बात मान ली जाए। ठीक है जी सर गुलशन, मेरा कंडीशन ये है, जैसे प्रोफेशनल फीस 1 लाख रुपए है, इस पे हम्म TDS 10,000 रुपए चार्ज होगा। फिर हम्म, उसके बाद जी क्या कहते हैं, मिस्टर ए में 90,000 की एंट्री जाएगी, जिसमें कि नब्बे ठीक हजार है का मैं पेमेंट करना होगा। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसके बाद जो एंट्री के बाद जब मैं एंटर करूंगा ना अमित, तो उसके बाद जो इफेक्ट पे जो मैं क्वेश्चन करने रेस करने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उस पे उसको इनाम मिलेगा। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट ओके। करते हैं। अब सबका आंसर आया, 90,000 रुपये आना चाहिए। ठीक है जी, मैं अभी एंटर करने जा रहा हूँ। अब मैंने मिस्टर ए को एंटर कर दिया। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, 80,000 रुपए आ रहा है सर। ओ ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी। जी ठीक है जी, जी। जो बताएगा गलती क्या की है, प्राइज को मिलेगा। कहाँ पे गलती हुई है या पार्टी क्या है, क्या गलती हुई है, ये जो गलती बता देगा उसको प्राइज इनाम मिलेगा 100 रुपीज, जो बता देगा। सर ओके आपने सर। वो बताया था कि 50,000 पे, फिर नेक्स्ट 50,000 होंगे उसका अलग से लगेगा TDS, ऐसा कुछ शायद। देखो, तो ट्वेंटी 50,000 रुपये परसेंट तक तो टैक्स लगा पचास सर। हजार रुपये तक 50,000 रुपये तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर चला गया अमाउंट, जैसे 1 लाख रुपए हो गया, तो पूरे अमाउंट पे TDS कटना चाहिए। 10% कटेगा तो 10,000 रुपये कटना चाहिए था, जैसा पहले सभी ने बताया। और 90,000 रुपये मिस्टर अमित को जाने चाहिए थे, लेकिन मिस्टर ए को सिर्फ 80,000 रुपये जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया ना। इसका आंसर चाहता हूँ मैं, ये आंसर कौन बताएगा, कौन डिजर्व करता है ये 100 रुपए का इनाम, आज जल्दी बताओ। सर इसमें एक कंडीशन हो सकती है सर। TDS कौन सी कटा हो। कंडीशन। जैसे सर मैं परचेज लेजर में जाके मिस्टर ए को डालता हूँ और प्रोफेशनल फिर 1 लाख रुपए डालता हूँ। हम्म ठीक है सर, अब जिसमें 1 लाख रुपए डाला तो मैंने 10,000 रुपए TDS इनका जमा कर दिया। हम्म बाकी का 90,000 रुपए जो है वो मैं पेमेंट करता हूँ इनका, और बैंक द्वारा, तो वो मैच नहीं होगा इस तरीके से करते हैं तो। नहीं होगा मैच, लेकिन हमें टैली के अकॉर्डिंग करना है ना, टैली खुद कैलकुलेट करता है TDS। अब टैली यानी 80,000 खुद। रुपये कैलकुलेट क्यों कर रहा है, हमें ये पॉइंट ढूंढना है कि 80,000 रुपये क्यों कैलकुलेट कर रहा है, ये पॉइंट है हमारा। जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे बताना पड़ेगा इसका आंसर। सर में भी पेन 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 TDS नंबर नहीं 50% दिया होगा तो हाँ डबल। सही बताया इसने। बिल्कुल ठीक बताया।
ये आंसर किसने दिया अभी? ये आंसर किसने दिया अभी? पेन वाला गुलशन पैन नंबर नहीं देते तो डबल टैक्स लगता है उस पे। गुलशन ने बताया, गुलशन। डबल टैक्स लगता है? डबल टैक्स तो नहीं बताया था मैंने। मतलब उस पे से डबल हो उसका डबल हो जाता है, जैसे अब 10% लग रहा होता है तो उसका डबल हो जाता है, 20% लगेगा फिर उस पे। नहीं, देखो गुलशन, तुमने सही आंसर तो बताया है, लेकिन लॉजिक गलत बताया। डबल टैक्सेशन नहीं होता, 20% का टैक्स होता है और हायर रेट होता है। 20% और हायर रेट। यहाँ पे क्या था कि 10% था, तो 10% और 20%, विच एवर इज हायर, तो 20% हो गया। और यहाँ पर इसका मैंने पेन नंबर नहीं डाला मिस्टर ए का, और जब पेन नंबर नहीं होता तो टीडीएस हायर रेट से लगता है, और हायर रेट का मतलब 20% का रेट लग गया। तो यहाँ पे गुलशन ने 100 रुपए जीत लिए। जीतना नहीं चाहिए था, लॉजिक गलत था, बट कोई बात नहीं, गुलशन को यहाँ पे 100 रुपए की प्राइस में नहीं मिल जाएगी, क्योंकि लॉजिक सही पकड़ा बंदे ने। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 80,000 रुपये जो देखो दिख थैंक रहा यू है ना सो यहाँ पे। मच। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुलशन। ठीक है जी। अब मिस्टर ए का हमें लेजर चेक चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे। एस्केप एस्केप बैक आ जाओ। और यहाँ पे देखो, क्रिएट का मतलब नया क्रिएट करना होता है, लेकिन ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, जैसे मैंने पहले बताया था। तो हम जाएंगे ऑल्टर में, लेजर में, यहाँ पे मिस्टर ए का लेजर बदलना है। तो मिस्टर ए पे फिर एंटर करेंगे, और यहाँ पर जाके इसका पेन नंबर प्रेस कर दे, क्या कर देंगे, पेन नंबर डाल देंगे। बताओ पेन नंबर, किसी किसी का पेन नंबर बताओ। चलो मैं ही बना देता हूँ उसका। BVNPA 0086। ठीक है जी। इसका मैंने क्या करा, पेन नंबर डाल दिया। अब देखो पेन नंबर डाल दिया तो इसका टीडीएस सही रेट से कटना चाहिए। अगर फिर भी गलत रेट से कटता है फिर तो गलती है। एंटर 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 एंटर। ठीक है जी। अब आते हैं एंट्री पे, फिर से वाउचर पे जाओगे आप। वाउचर पर जाने के बाद जनरल, और जनरल पे आप फिर से प्रेस करोगे प्रोफेशनल फीस एक्सपेंस 1 लाख रुपीज, और क्रेडिट में कौन आएगा, मिस्टर ए। अब बताओ मिस्टर ए कितना कितना आएगा अब? 90,000। अब सर आपने 90,000 पैन रुपये। नंबर डाल दिया तो 90,000। अब कितना आ रहा है देखो मेरे एंटर करने के बाद? आ गया ना 90,000 रुपये, 90,000 क्यों? हाँ, इसका मतलब कि अब टीडीएस सही कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है जी। यही पॉइंट था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस, ऑटोमेटिक 10,000 रुपये आ गया। और नरेशन डाल दो, बीइंग प्रोफेशनल चार्जेस बुक्ड। टेंशन मत लो, अभी एक और प्राइज मनी वाला क्वेश्चन आने वाला है जल्दी, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आते, थोड़ा स्पीड में करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। टीडीएस पेमेंट टू गवर्नमेंट। अब जो टीडीएस मैंने 10,000 रुपये डिडक्ट करे थे मिस्टर ए के, अब हम सरकार को जमा कराने हैं। जमा करवा देते हैं जी, अभी करवा देंगे। तो जमा कराने के लिए हमें क्या करना होगा, वाउचर में कौन सा वाउचर यूज करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, हम पेमेंट कर रहे हैं। विच वाउचर शुड आई यूज? पेमेंट पेमेंट वाउचर। वाउचर। पेमेंट वाउचर, वेरी F5। गुड। पेमेंट वाउचर शॉर्टकट की, जल्दी फटाफट। F5। राइट साइड में देखो और फंक्शन बताओ। एफ। F5। F5। और यहाँ पे क्या डालेंगे, बैंक बैंक अकाउंट मैंने एंटर कर दिया, किस बैंक से पैसे जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस। देखो ऑटोमेटिक 10,000 रुपये दिख रहा है ना उसका नजरिए, देखो कि 10,000 रुपये मेरे पास क्रेडिट में आ रहा है जमा कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये डाल दिए, सॉरी 1,000 हो गया। देखो यहाँ पे अब टीडीएस और प्रोफेशनल चार्जेस जमा कराने की देखो लाइबिलिटी जीरो हो गई। ठीक है जी। बीइंग प्रोफेशनल चार्जेस पेड। ठीक है जी। अब देखो हमारा प्रोफेशनल चार्जेस की पेमेंट हो चुकी है। फिर एस्केप करके मैं बाहर आ गया। ठीक है जी। अब आप देखो, अब आपको शॉर्टकट की क्या थी, सर्च करने की, किसी लेजर को शो करने की, डिस्प्ले, DLS डी। डी डी ए एल डिस्प्ले अकाउंट बुक्स और लेजर। क्या था, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस। आपने एंटर किया तो देखो पहले यहाँ पे बुकिंग हुई और फिर पेमेंट हो गई। लास्ट में देखो क्लोजिंग बैलेंस जीरो, मतलब हमें कोई पैसा जमा नहीं करवाना है अब। ठीक है जी। अब एस्केप करके बाहर आ जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट विद टीडीएस। अब सेम अमाउंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का भी आ गया जी, बिल्कुल ठीक है जी। अभी कर देते हैं। अब 2 लाख रुपए का हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क का एक्सपेंस आया हुआ है। ठीक है। उसके अंदर हमने मिस्टर रोहित से कोई सर्विस ली है 2 लाख रुपए की। और कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट कितनी होती है,
30,000 रुपये सिंगल पेमेंट, 1 लाख रुपए पूरे साल की, 2 लाख रुपए का हमने एक कॉन्ट्रेक्चुअल का वो बिल लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी लिमिट से क्रॉस हो गया, तो हमें टीडीएस रिलेटेड करना होगा। ठीक है जी, चलो जी कुछ कर लेते हैं। फिर से मैं वाउचर में फिर से हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। अब लेजर कौन से बनाने हैं मुझे, एक तो बनाना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस का लेजर, और एक मुझे बनाना है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट का लेजर, और एक बनाना है मुझे रोहित का लेजर। ठीक है जी, तो पहले हम बना चुके हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट लेजर बनाना शुरू करूंगा। ठीक है जी, क्रिएट लेजर टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है जी, टीडीएस नेचर ऑफ एक्सपेंस में क्रिएट कर देंगे। नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर। अब कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर में सेक्शन क्या आता है, 194C, पेमेंट कोड 94C। अगर देखो अब बताओ कि कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट में अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ में तो कितना परसेंट था, 1%। 1%। और इंडिविजुअल इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, 2%। और लिमिट क्या थी, 30,000 रुपए की। और सिंगल पेमेंट साइड लेके चल रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट और सेव कर लेते हैं। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन चुका है, उसके बाद आता है नेक्स्ट रोहित अकाउंट। अब रोहित को मुझे पेमेंट करनी है, किस लेजर में आएगा, पेमेंट अकाउंट। क्रेडिटर, क्रेडिटर फ्रेंडली क्रेडिटर, पेमेंट देनी है ना, रोहित, रोहित का अकाउंट है। ठीक है जी, क्रेडिटर है हमारा वो, डिडक्टी है, टीडीएस कटेगा, यस कटेगा। और हमारा जो रोहित है वो क्या है, वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हम यहाँ से देखेंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट, ये मैंने रेजिडेंट कर दिया। ये सेम वाउचर में डिडक्ट करना है टीडीएस, सेम मैं वही बना रहा हूँ जो मैंने पहले बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका पेन नंबर डाल देंगे, नहीं तो फिर से 20% डिडक्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने पेन नंबर मुझे BVNPR BVNPR 0086Q 0086Q। ठीक है जी, यहाँ पे प्रोवाइड पेन डिटेल्स, ये रहा रोहित अकाउंट। ठीक है, अब रोहित का अकाउंट भी क्रिएट हो गया। अब हमें बनाना है क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस हमारे लिए किस नेचर का एक्सपेंस होगा, जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी नाइस। और क्या ये स्टेचुरी में टीडीएस डिडक्शन है, यस बिल्कुल है। और यहाँ पे क्या डालना है हमें, अप्लीकेबल, और कौन सा नेचर क्या है कॉन्ट्रैक्ट वाले का, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अब सारे लेजर बन चुके हैं, एस्केप करके मैं बाहर आ गया। अब फिर से हम एंट्री करेंगे वाउचर में प्रेस करके, जनरल वाउचर, दैट इज कॉल्ड F7। ठीक है जी, अब करते हैं एंट्री। अब देखो एंट्री क्या है, डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए कर देते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस 2 लाख रुपए। और क्रेडिट में टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, और रोहित को कितने, अब रोहित को कितने देने हैं, अब रोहित के लेजर में कितना आएगा, 1,98,000। हाँ ये तो सिंपल था, इसमें तो मैंने सामने लिख के दिया था आप लोग को, ये रहा पीपीटी में दिख रहा था। ठीक है जी, तो 1,98,000। ठीक है, तो आपने 1,98,000 था ना, ये नहीं वाउचर सेम, यहाँ पे 1,90,000, और यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, मैं 2,000 पे आ गया, बीइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंस बुक्ड। ठीक है जी, अब एक और चीज आपको सिखाता हूँ, फिर से आपको एंट्री देखिए, DL प्रेस करते हैं वैसे कर लेना, और रोहित का लेजर खोल लो। आप देखो, अब देखो रोहित, रोहित के पेन में, रोहित हमारा इंडिविजुअल था, और आपने पहले भी सीखा होगा कि जिसके पेन का फोर्थ अल्फाबेट T होता है मतलब प्रोप्राइटर है, CA कंपनी है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर F है, फर्म है। ठीक है, तो ये अगर P है मतलब प्रोप्राइटर है, मतलब इंडिविजुअल है, तो उसका क्या हुआ, टीडीएस 1% से कटा। लेकिन अगर मैं रोहित के पेन का फोर्थ अल्फाबेट अगर C कर दूं, कंपनी बना दूं, तो इसका टीडीएस रेट क्या होगा, इसका टीडीएस रेट 2% से कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 194C आ जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं। तो मैं रोहित के अकाउंट में गया, आपको पता है कैसे करना है, ऑल्टर में जाके रोहित का अकाउंट चेंज करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप जाओ, और यहाँ पे इसके पेन को पता है क्या करो,
फोर्थ अल्फाबेट को सी कर दो, क्योंकि एन का मतलब होता है, पी का मतलब होता है इंडिविजुअल। अब मैं ऐसा बना रहा हूँ कंपनी, सी प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो, अब अब इसको बैक जब करोगे ना तो 194 उठाएगा, 196 उठाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो रोहित का अकाउंट है वो क्या बन गया है, एक तरीके का वो बन गया, क्या, कंपनी का अकाउंट बन गया है, ठीक है। तो वो टीडीएस रेट 2000 रुपये एक्स्ट्रा उठाएगा, ठीक है ना। तो इसके पैन नंबर से डिसाइड करता है कि टीडीएस का रेट कितना करना है। उसके बाद रेंट की पेमेंट है और बाकी असाइनमेंट्स है आपके लिए। तो ये रेंट वाली पेमेंट और असाइनमेंट्स ये आपको खुद करने हैं। तो अभी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। बाकी चलो, एक क्वेरी हो जाती है, फटाफट आंसर देना। ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं फटाफट, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल सर्विसेज टेकन फ्रॉम मिस्टर ए 70,000 रुपीज विद इनवॉइस नंबर A1001, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा तो क्यों होगा, किस सेक्शन में होगा, जल्दी बताओ। क्योंकि सर सर डिडक्ट होगा, क्योंकि 50,000 से लिमिट ज्यादा है और 94G से इसकी सेक्शन से डिडक्ट होगा 10%। बिल्कुल गुलशन, यू आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंट बुक्ड फॉर 30,000 रुपीज टू साहिल, नहीं होगा। 50,000 पे होने चाहिए कम से कम, 6 लाख रुपए की पूरे साल की लिमिट है, ठीक है ना। तो 50,000 तक भी करोगे तो कोई टीडीएस नहीं, 50,000 1 रुपए करोगे तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ठीक है जी, तब कटेगा टीडीएस। लास्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंसेस बुक्ड ऑफ ₹70,000 टू रंजन, क्या इस पे टीडीएस डिडक्ट होगा क्या नहीं? यस यस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और कॉन्टेंट वाले का ना मेरे को कॉन्सेप्ट समझा दो जो मैंने समझाया था, ये इस एंट्री का बता दो और कॉन्सेप्ट समझा दो, प्राइज मनी इसके लिए भी। चलो शुरू करो। सर ये सिंगल पेमेंट कर रहा है या एनुअली कर रहा है? ये सिंगल पेमेंट कर रहा है। सर सिंगल पेमेंट कर रहा है तब तो फिर लगना चाहिए, क्योंकि 30,000 ही हो है ना लिमिट। अच्छा, और नहीं करना चाहिए मैं कहूंगा तब? एनुअली सर जैसे, हाँ अरे अगर नहीं, वैसे पेमेंट अरे कम कम करके कर दिया, 3-4 करके। नहीं सही साक्षी, आप ठीक हो। अगर सिंगल पेमेंट 30,000 से ऊपर होगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा, बिल्कुल सही है। आप मुझे फटाफट कॉन्सेप्ट समझा दो दोनों का, सिंगल पेमेंट और डबल पूर होल होल पेमेंट का, पूरे साल का प्राइस मनी तभी मिलेगी ना। चलो जल्दी एक्सप्लेन करो फटाफट, सेक्शन सर सिंगल 194। पेमेंट सर सिंगल पेमेंट में है कि अगर हमारी जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो 30,000 से कम है, एक बार में ही अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर वही अगर हम उसको थोड़ा कम कम करके करें, लाइक अगर 15-15 हजार करके मैं 2 बार कर रही हूँ, पर एनुअली 1 लाख से कम ही होना चाहिए। 1 लाख से अगर ज्यादा आता है एनुअली तब भी लगेगा। अच्छा, और अगर मैंने क्या करा, मैंने मैंने 25,000 रुपये दिए पहले किसी को, ठीक है, और फिर जी मैंने सर। दोबारा 25,000 रुपये दिए, क्या टीडीएस काटूंगा? नहीं सर, क्योंकि एनुअल तो 1 लाख से कम है ना, तो नहीं कटेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर मैंने किसी को 90,000 रुपये दे दिए इकट्ठे? जी सर, इकट्ठे? हाँ, फिर? तब तो जल्दी, सर सोचना नहीं पड़ना लगता, सोचना नहीं चाहिए, जल्दी बताओ साक्षी, जल्दी बताओ। सर सिंगल 90,000 मैंने इकट्ठे दिए, कटेगा। तब तो कटेगा ना? कटेगा। जी सर, क्योंकि 30,000 है। अच्छा ठीक है, आपकी प्राइस मनी फिक्स है। आपका नाम साक्षी? जी सर। ठीक है जी, आपका भी प्राइस फिक्स कर देते हैं। तो गुलशन और साक्षी आज के हमारे चैंपियन रहेंगे आज के। बाकी और किसी का कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम वाइंड अप करेंगे। सर अगर हम वो टीडीएस जैसे हम जमा नहीं करते, अगर हम यहाँ एंट्री नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कोई पेनल्टी भी लगती है? हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने साक्षी जी। देखो, अगर आपने टीडीएस को, देखो दो चीज होती है, एक तो टीडीएस को आपने डिडक्ट तो कर लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, एक जी होता है सर। कि आपने TDS को डिडक्ट ही नहीं करा। दो केस होते हैं। अगर आपने इंसान किसी भी अपने वेंडर का टीडीएस डिडक्ट कर लिया, टीडीएस डिडक्ट करके अपने आपने रख लिया किताबों में, लेकिन आपने सरकार को जमा नहीं करवाया, ये तो बड़ा गलत किया आपने, कि पार्टी के पैसे भी ले लिए और जमा भी नहीं करवाया। तो 1.5% का इंटरेस्ट लगता है पर मंथ, विच इज इक्वल टू 18%, या। और दूसरा केस कि आपने पार्टी का टीडीएस ही नहीं काटा,
मतलब पार्टी को 10,000 1 लाख देने थे, हमने पूरे पार्टी को 1 लाख रुपए दे दिए, टीडीएस हमने काटा ही नहीं। और अगर हम टीडीएस काटते ही नहीं तो आपको 1% कटेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 12% पर एनम। ठीक है जी, ये दोनों चीजें होती है। बट एक और चीज होती है कि टीडीएस डिडक्ट ना करने पर जो एक्सपेंस होता है ना, कंपनी का जो खर्चा होता है, वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता 30% तक। ठीक है, मतलब 30% उसकी एक्सपेंस को इनकम मान लिया जाता है और उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, ये होता है। ठीक है जी साक्षी, आई थिंक यू अंडरस्टूड। जी सर। एनी क्वेश्चन? समझ में नहीं आया या फिर सब कुछ क्लियर है? जल्दी बता दो एक बार में। सब कुछ क्लियर। सब कुछ क्लियर है, हाँ तो ठीक है। मतलब पॉजिटिव है ना, मतलब शांत होना भी पॉजिटिव है आप लोगों का। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड नाउ ओवर टू यू, नाउ ओवर टू यू अभिषेक। तो थैंक यू सर फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल क्लास। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि साथ में दिखते रह सकें और ऊपर फोकस। तो थैंक यू। इन द मीनवाइल आप सभी अपनी अटेंडेंस की चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और आपके अटेंडेंस के लिए आपको अपने नाम और अपने फोन नंबर की लास्ट से दीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं सेशन कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर। जैसा कि आज हमें सुभाष मलिक सर ने ज्वाइन किया है, तो सीधे मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ आज की रीडिंग पर्सन की ओर और कंक्लूडिंग सर। चलो, थैंक यू अभिषेक। सबसे पहले तो सो मच थैंक यू और अप्रिसिएशन टू विक्की गौतम। बहुत ही अच्छी तरह से और विद एग्जांपल और बार बार कह के सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं पूरा सुन रहा था बिल्कुल। और ये 4 बच्चे बहुत ही इंटरेक्टिव थे इसमें से, जिसमें से 2 तो हमारे विनर ही बन गए, गुलशन और साक्षी। क्वेश्चन भी उनके बहुत रेलेवेंट थे, अच्छे थे, आंसर भी सारे ठीक आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और बड़ा अच्छा इन्होंने टीडीएस के स्लैब बताए, टैली में एंट्री करनी बताई, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो पेनल्टी क्लॉज है कि जमा नहीं कराएंगे तो क्या होगा, नहीं काटा तो क्या होगा, वो सारा एक्सप्लेन किया है। क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रक्चरली होती है लाइबिलिटीज़, इसमें गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो जो भी अकाउंटिंग देखता है उस सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी एंगल से। तो थैंक यू विक्की, थैंक यू एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स। और कल हमारा प्रोग्राम रहेगा ट्रायल बैलेंस विद टीडीएस एंड जीएसटी, वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे सीए विजेंद्र बंसल जी। तो सेम टाइम 9 बजे आएंगे सब लोग और पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच सर। थैंक यू सर फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और जैसा कि ये टीडीएस क्लास भी आपकी खत्म होती है और आगे हम बढ़ते हैं इस सेशन के फोटो साइंस के लिए टुवर्ड्स सर कुछ कुमार जी। ओवर टू यू। Thank you, sir. Good evening, dear friends. I am Ankush Kumar on behalf of Saksham Rozgar Society. Feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mr. Vicky Gautam sir for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and speech. I wish to acknowledge and thanks all the seniors of Saksham Bharti and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to Mr. Subhas Malik sir for having taken so much interest in the training session. Wishing you all a very good night. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, बाय बाय। थैंक यू अंकुश कुमार फॉर वोट थैंक्स। और जैसा कि आपको क्लास पसंद आई होगी तो इसका लिंक भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कल। और आपको कल जो क्लास हुई थी उसका लिंक भी आपको दे दिया गया है। तो इस टीडीएस की क्लास के लिए पूरा अच्छे से जानने के लिए और कुछ रह गया और सीखने के लिए आप दोबारा देख सकते हैं। और पसंद आया तो अपने दोस्तों और अपने जानने वाले साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आप सभी से। शुभ रात्रि, आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल के साथ।